Good morning, everyone. Today we have Dr. Arslan Javed with us for the session on business projects, process management, and we are here to gain a better understanding of how to optimize and streamline the business processes. And Dr. Arslan Javed is a well-recognized trainer with a highly dynamic experience of more than 14 years in entrepreneurship industry. And he is a trainer, entrepreneur, and a researcher contributing in domains such as project management, performance management, confidence coaching, and human capital development as well. He's a founder of some startups as well. So, sir, if I have missed something, you can introduce and continue. The platform is all yours. We can start now. Thank you so much, Mr. Talha. Well, let me see. Can you see me? Yes, sir. All right. So, assalamu alaikum, everyone. कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम जी सर ठीक आप हाँ, this is going to be an interactive session, so it won't be one way कि जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ और बाकी सब चुपचाप सुन रहे हो, because you are all entrepreneurs and entrepreneurs need to be responding. So I'm very excited to once again part of this regional plan 9 and it's always a pleasure. और जब भी अभी आजकल it's been a bit busy for me as well. I've been traveling a lot, but today on this very day we have decided कि आप लोगों के साथ business process planning और management के ऊपर थोड़ी सी बात की जाए. और इनिशियली मेरे आज का जो ये सेशन होगा इसके 2 राउंड्स होंगे. The first round would be me asking you guys what you know, and the second round would be me explaining what it should be and what I think how it should be. Because there is no right or wrong answers here. You all are very well equipped people. Regional Plan 9 एक ऐसा platform है जो equipped फौजी तैयार करता है एंटरप्रेन्योरियल लेवल पे. तो आई बिलीव कि यू गाइस मस्ट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई विल बी टुडे exchanging my views to what I understand, but I believe with what you have got. तो जब हम बात करते हैं business processes की, तो I would like to ask a few questions regarding that. कि अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स बैठे हुए हैं. आई होप के उनके प्रेसिडेंट्स और ये क्या कहते हैं फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स भी यहाँ पर आज हमारे साथ शामिल होंगे. आई जस्ट वांटेड टू नो कि व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस बिजनेस प्रोसेस. बिजनेस प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है? Anyone? Actually, sir, we have audience from all across Punjab. We have people, startup founders from Texla, Rawalpindi, Bahawalpur, and Faisalabad Center. Oh, amazing. So, welcome all. देखिए मैं जैसा मैं अभी बात कर रहा था बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की, तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि एवरी बिजनेस दैट इज टू बिगिन मस्ट बिगिन विद अ फिलॉसफी एट हैंड. कि आप लोग जो है वो अपना बिजनेस स्टार्टअप जो है उसको एग्जीक्यूट क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. तो रीजन को मद्देनजर रखते हुए हम बात करते हैं. दरअसल मैं चाहूंगा कि कुछ लोग हमारे साथ आज कम्युनिकेट करें ताकि मैं थोड़ा सा एक चीज जान लूं कि किस लेवल पे जो बिजनेसेस हैं वो मौजूद हैं. मुझे कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक कि आज का सेशन से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और बिजनेस प्रोसेस से आप लोग क्या हासिल करना चाहते हैं. Yes, sir. Of course, we have startups from different domains. We have diverse domains as well. So I'd like let's start some from of them to Faisalabad please Center. come. Kindly introduce yourself one by one. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी. I am Kashant Tahir from Plan 9 Faisalabad.
I am founder of Boots.pk. Boots.pk. Right. Boots.pk is a brand where we deal in handmade leather shoes. Absolutely great. तो काशान, ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू यू एंड योर टीम, आपको बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की नीड क्यों है? सर बिकॉज बिजनेस करने के लिए ये जरूरी होता है कि हमें पता हो कि बिजनेस करते कैसे हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने बिजनेस प्लान्स बनाए हैं अपने? जी बनाए। ठीक है, बिजनेस प्लान बना लिया आपने, अपना विजन सेट कर लिया, अपना एक मिशन जी सेट मिशन जी। सेट कर लिया। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स गोल जो है वो सेट है। आपने अपनी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके एक रिसोर्स पूल बनाया है कि आपकी रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हैं आपके बिजनेस को कंडक्ट करने की, और आप इसको कल कहाँ तक लेके जा सकते हैं इन रिसोर्सेज के बलबूते पे। सर नेक्स्ट हमारा मिशन है कि हम नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल तक इसको लेके जाएं अपने ब्रांड को। दैट्स ग्रेट, दैट इज ग्रेट। और जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि डू यू थिंक कि यू हैव गॉट इनफ रिसोर्सेज एट द मोमेंट? मे बी यस। मे बी यस। ओके, देखिए प्रोसेस में बात करते हैं कि मुखातिब, तो अबाउट बिजनेस दिस इज अबाउट इम्प्रूविंग योर इफेक्टिविटी। ठीक है, आप लोगों के बिजनेस की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हम प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, बिकॉज व्हेन वी फाइंड मेक अ बिजनेस इज अ सेट ऑफ वेरियस प्रोसेसेस which make it easier to उसकी एफिशिएंसी इनहेंस हो जाती है, उसमें टाइम वेस्टेज का एलिमेंट कम से कम हो जाता है, उसके अंदर नेटवर्किंग का एलिमेंट बढ़ जाता है, कोलैबोरेशन के एस्पेक्ट्स जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम बिजनेस प्रोसेस की बात करते हैं, इट इज अ कंप्लीट मिक्स जस्ट टू मेक श्योर दैट योर बिजनेस इज एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमारी इनपुट कम भी हो तो हमारी आउटपुट जो है वो ज्यादा निकले, एंड इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम बिजनेस प्रोसेसेस को समझते हैं। तो अब जब हम बिजनेस प्रोसेस की बात करते हैं तो देर आर यू नो सो मेनी बिजनेस प्रोसेसेस, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टार्ट अ बिजनेस, हमें बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए उसके कोर हमारी रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कोर रिसोर्सेज के बाद हमें एचआर के प्रोसेस एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, फाइनेंसिस के प्रोसेस एस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, मार्केटिंग को देखना पड़ता है, एंड अल्टीमेटली जब ये सारे अपने अपनी जगह पर सेगमेंट्स सेट हो जाते हैं, फिर हमें इनको इंटीग्रेट करना होता है। व्हेन वी इंटीग्रेट देम, ऑफ कोर्स, तो हमारा एक प्रैक्टिसिंग मॉडल जो है वो जनरेट हो जाता है। अब यहीं पे मैं बात करता हूँ कि जब हम हमारे ये सारे प्रोसेसेस तैयार होने शुरू हो जाते हैं तो इससे एक चेन तैयार होती है, और वही चेन जो है आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको सबसे पहले जब भी एक बिजनेस प्लान या बिजनेस प्रोसेस जब आप डेवलप कर रहे होते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी जो बिजनेस की वायबिलिटी है इसका एक एनालिसिस करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो बिजनेस स्टार्टअप है, वट एवर यू यू आर, जैसे अभी मेरी boots.pk के फाउंडर से बात हुई है। ठीक है, यहाँ पर आई कैन सी सो मेनी क्लोथिंग के ब्रांड्स मौजूद मुझे नजर आ रहे हैं, ट्रेंडी क्लोजेट है एंड ऑल दैट। तो ये जितने भी आप लोग बिजनेसेस हैं, ये सबसे पहले अपने बिजनेस की पोटेंशियल को एनालाइज करें, फिर मार्केट गैप को एनालाइज करें, और उसके बाद कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको ग्रो करने से रोकती हैं। बेसिकली बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करने से पहले हमें बीपीएम को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का है। हमने अपने बिजनेस को एनालाइज किया, बिजनेस का शॉर्ट एनालिसिस किया, उसके बाद हम उसका मॉडल देखते हैं कि हम किस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं। अब मॉडल्स में आप इंटरनल मॉडल्स की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, एक्सटर्नल मॉडल्स की बात करें जैसे कुछ बिजनेसेस B2C होते हैं, कुछ बिजनेसेस B2B होते हैं, ये एक्सटर्नल मॉडल्स होते हैं।
तो इसी तरह से हम पोटेंशियल सिनेरियोज एंड वेरिएबल्स देखते हैं हर बिजनेस मॉडल। तीसरी जो चीज आती है दैट इज हाउ यू एग्जीक्यूट योर बिजनेस। वंस जो आपने सबसे पहले अपने बिजनेस के एनालिसिस कर लिया, दूसरा आपने उसके एक मॉडल तैयार किया, तीसरे लेवल पे आप देखते हैं कि आप उस मॉडल को एग्जीक्यूट कैसे करें। मॉडल की एग्जीक्यूशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल की एग्जीक्यूशन किस तरह होती है कि लेट्स से हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए सबसे पहले इस निश को फोकस करेंगे। हमने निश को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब उस निश तक हमारी रीच कैसे डेवलप होगी, हम इसकी तरफ इस एग्जीक्यूशन फेज में हम इन चीजों को देखते हैं। जब हम एग्जीक्यूशन को इनिशिएट करते हैं, व्हाट वी डू, हम अपने प्रोसेसेस को क्लोजली मॉनिटर करना शुरू करते हैं और उनके अंदर जब, क्योंकि एग्जीक्यूशन एक हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, प्लानिंग के वक्त एक अलग सिचुएशन होती है, जब हम एग्जीक्यूशन पे आते हैं तो फीडबैक्स नए किस्म के आते हैं, चैलेंजेस नए किस्म के आते हैं, तो थोड़े से एडवर्स सिनारियोज आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें रुकावटें जनरेट होनी शुरू होती हैं व्हेन वी एग्जीक्यूट इट। तो उसके लिए मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है, किन प्रोसेसेस से आपके बिजनेस को फायदा हो रहा है, किन प्रोसेसेस से आपके बिजनेस को नुकसान है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब अपना एक बिजनेस रन कर रहा था, इट वाज फ्यू इयर्स बैक, तो ये हमने एक इवेंट प्लानिंग का बिजनेस इनिशिएट किया। अब तो हम चूंकि सारा ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, सबसे हम पहले क्या करते थे, बिल बोर्ड्स लगाते थे, पूरे शहर में बिल बोर्ड्स लगा दिए, मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। फिर हमने वॉक इन कस्टमर्स के लिए वो रखा, क्या कहते हैं, कोई ना कोई इंसेंटिव रखना शुरू कर दिया। तो हम अपना जो फीडबैक फॉर्म बनाया करते थे, हमारे एम्प्लॉयज या हम जो कस्टमर से फीडबैक लेते थे, उसके अंदर हम ये देखते थे कि हमारी किस प्रोसेस से क्लाइंट जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। अभी भी हम वैसे फनल टेक्निक यूज करते हैं मार्केटिंग करते वक्त, हम ने फनल्स को बाय किया हुआ है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, अभी भी हम अपना फीडबैक फॉर्म देते हैं तो उसमें लिखते हैं कि इंस्टाग्राम से आपको पता चला, फेसबुक से पता चला, वर्ड ऑफ माउथ से पता चला, किसी दोस्त ने बताया, वट एवर। तो मतलब ये मॉनिटर करते हैं आप प्रोसेसेस की। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा, ये monitoring के बाद ऑप्शन एंड ऑटोमेशन है कि जब ये मेथड कुछ करना शुरू है तो हमें उसके ट्वीक करनी होती है कि प्रोसेस जो है वो काम कर रहे हैं और कौन से प्रोसेसेस जो है वो काम नहीं कर रहे। और यहाँ पर फिर एक दफा मुझे अकेले बोलते हुए थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है। जस्ट अ सेकंड, या सो लेट्स गेट थोड़ा सा ऑर्गेनिक होते हैं। आप में से कुछ बिजनेसेस जो हैं वो मुझसे बात करना चाहते हैं। देखिए, दिस सेशन विल बी काइंड ऑफ अ कोचिंग सेशन। मैं वन वे बोलना नहीं चाहता, आप लोगों को मैं गाइड करता जाऊंगा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि मैं सेकेंड राउंड में मैंने अपना ज्ञान बांटना है वो मैं चाह रहा हूँ सेकेंड राउंड में हूँ। पहले मुझे पता चले आप लोगों को क्या चैलेंजेस इस वक्त अपने बिजनेस से आ रहे हैं। आप मुझसे बिल्कुल ओपनली बात कीजिए कि दिस इज माय बिजनेस, अभी हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा, अभी मुझसे फैसलाबाद से किसी ने बात की है, अगर रावलपिंडी Well, से this, कोई बात this करना। platform is for all of you. If anyone want to interact with our guest speaker, you are most welcome. यस, बिल्कुल, डू कॉन्टेक्ट, डू कनेक्ट। वो जगह मैंने मस्जिद में पहुंचना और सोशल सर्कल आपका। यस, एनीवन फ्रॉम रावलपिंडी? हेलो, anyone from Rawalpindi, if you are listening, do connect. जी, It will be like sitting left. No one will see that. Anyone from Texla? Yes, sir. yes, Mushtaq Khan, right? Ji, sir. My name is Mushtaq Khan. I'm the founder of Kalmak. Tell me about it. Yeah, Kalmak is basically a bridging platform जो कि locals को tourists से मिलाती है।
सो व्हाट वी आर डूइंग इज हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें जो पाकिस्तान के टूरिस्ट अट्रैक्टिव एरियाज है वहाँ के लोकल्स अपने कैंप्स जो है या कैंप साइट्स हमारे वेबसाइट पे लिस्ट करेंगे एंड हम जो ट्रेवलर्स है उनको अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि वो अपने घर में बैठ के या फिर कहीं पर भी बैठ के आसानी से 2 to 3 स्टेप्स में उसको बुक करें. सो अभी दिस आपका इज व्हाट. बिजनेस किस लेवल पे है? वेरी नाइस मुश्ताक साहब, किस लेवल पे अभी आपका बिजनेस स्टार्टअप जो है वो उसको कहाँ पे पहुंचे हैं? सर वी आर करंट अंडर डेवलपमेंट स्टेज. हम अभी बेटा टेस्टिंग कर रहे हैं. अभी अपना प्रोडक्ट जो है खुद टेस्ट कर रहे हैं कि वो किस तरह से. इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट मंथ हम बेटा टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च बाय ईद. इंशाल्लाह ताला. सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर ग्रुप? सर मेरे साथ ग्रुप में 6 मेंबर्स हैं. और सबके काम डिवाइडेड हैं, वेल डिफाइंड है? जी सर. सबके काम डिवाइडेड. आई थिंक आई हैव मेजरली फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग क्योंकि मैं प्री लॉन्च मार्केटिंग करना चाहता हूँ. इसीलिए वी हैव और ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स. तो कंटेंट टू कंटेंट राइटर्स, one video editor and one graphic designer, plus I have one UI UX designer and one website developer. Amazing. That is a very well structured company you've got here. Mushtaq sir, how do you think that business process management can help you? Processes आपके हर चीज में डेवलप हुए हैं, जिससे आपने बात की आपके पास टीम है, तो क्या आप हर चीज को प्रोसेस के जरिए करें या बाय द ईयर चल रहे हैं? सर करंटली इट्स वेरी इनफॉर्मल क्योंकि आई बिलीव कि हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है. सो आई एम लाइक अ वेरी ओपन कंपनी स्ट्रक्चर है कि हर कोई अपनी आइडिया कंट्रीब्यूट कर सकता है, आगे ले आ सकता है. सो इट्स नॉट फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है. सो लोअर से हायर लाइक वी ट्रीट ईच वन इक्वली एंड आई सबको मैं मौका देता हूँ कि हर कोई अपने आइडिया शेयर करे जिस किस तरह से हम अपने कस्टमर्स को वैल्यू पहुंचा सकते हैं, किस तरह से उसको बढ़ा सकते हैं. सो करंटली इट्स वेरी इनफॉर्मल. राइट, राइट. इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट बीइंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ये बताइए, आप अपने नेटवर्किंग के लिए क्या कर रहे हैं जो आप अपने जी? सर वी आर टेकिंग मल्टीपल स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ कोर्स हमारा जो मेजर वेपन है दैट इज ऑनलाइन सोशल मीडिया. राइट. तो हम डिफरेंट बिजनेसेस को रीच आउट कर रहे हैं जो कि हमें लगता है कि वो ऑलरेडी कैंपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म 2 है. हमें सप्लाई चाहिए, डिमांड भी चाहिए. तो डिमांड के लिए हमें सप्लाई साइड को उसको मुकम्मल करना पड़ेगा. सो और विच इज अ बिगर चैलेंज एक्चुअली हमारे लिए सप्लाई साइड. तो उसके बिल्कुल. लिए वी आर रीचिंग आउट टू दोज पीपल जो कि कैंपिंग्स प्रोवाइड करते हैं. लोकल्स हमने देखा होगा सर, अगर हम टूर पे जाते हैं तो लोकल्स प्रोवाइड करते हैं लेकिन उनका कोई प्रेजेंस नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि वो कहाँ पे होते हैं, क्या कहाँ नहीं है. तो हम उनको रीच आउट कर रहे हैं क्योंकि दैट विल बी इजी फॉर अस उनको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना. एंड सेकंड हम ये यूज कर रहे हैं कि हम जो यूनिवर्सिटी में जो लोकल कम्युनिटी जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के हो गए, वहाँ के अपनी यूनिवर्सिटीज में लोकल ग्रुप्स बने होते हैं जिस तरह नारायण का खान के हो गए. तो वी जी आर जी. ट्राइंग टू रीच आउट ताकि उनके थ्रू हमें लोकल्स की सपोर्ट मिल सके. एंड अच्छा, देन आप इसमें, सॉरी टू इंटरप्ट, आप इसके अंदर दूसरे जो टूरिज्म के जो लोग हैं, जो कंपनीज, टूरिज्म कंपनीज हैं, उनको भी कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अपने थ्रू? सर जो टूरिज्म कंपनीज है वी आर उनको हम सिर्फ ये दे रहे हैं कि दे आर कस्टमर्स और पोटेंशियल पार्टनर्स. उनको हम एक अल्टरनेटिव सोर्स दे रहे हैं क्योंकि हम काफी सारे सर उनको उनको हम ये बात हुई थी कि कस्टमर जो कि उनके पास आते हैं, जो टूर टूर ट्रेवल एजेंसीज के पास आते हैं, दे आस्क फॉर कैंपिंग. लेकिन क्योंकि ऑफ कोर्स इधर दे हैव टू डू इट देमसेल्व्स जो कि वो भी क्वाइट कॉस्टली पड़ सकती है उनको. और उनको ऐसा कोई प्री इंस्टॉल कैंप्स तो मिलते नहीं है ना पाकिस्तान में ऐसे कोई इंस्टॉल है सिवाय केपी ने जो लॉजेस बनाए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है. केपी गवर्नमेंट ने. अब ठीक हो गया. आई मस्ट टेल यू कि मेरा अपना भी यही एक बिजनेस चल रहा है, ट्राइब टाइम टूर्स टॉक. तो हम लोग राइट. भी ट्रैवल, ये टूरिस्ट ग्रुप्स लेके जाते हैं डिफरेंट सिटीज में, इवन डिफरेंट कंट्रीज में भी. तो ग्रेट सर. दिस इज अ गुड प्लान. इसमें आप हमें एक जो है कैंपिंग साइट का जो सेगमेंट है वो उस तरह से आप कर रहे हैं, उसके वो एग्जैक्टली दैट सर. और एक और सर वी आर क्योंकि इससे ये क्या होगा कि सर जो प्राइवेट लैंड्स हो गए उनको एक्सेस मिल जाएगा ट्रेवलर्स को. इससे पहले सर आप लोगों को भी प्राइवेट लैंड्स का एक्सेस नहीं मिलता है. सो हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट जो ओनर्स है, लैंड ओनर्स, हम उनको अपने साथ मिला रहे हैं ताकि वो अपनी जगहों पे कैंप्स बिल्ड करें ताकि ट्रेवलर्स को उनका एक्सेस मिल जाए, न्यू लोकेशंस उनको देखने का मौका मिलेगा.
So Very this right. is the plan. Very right. All right. We, That is brilliant. जी. yes, we can catch up after the session if you, sir. I would love to discuss with you my Of idea. course, of course, of course. Okay. Abhi, of course, we are exclusively interested in how the processes can be developed within your organizations, within your startup. कोई और मुझसे बात करना चाहे? कोई एग्रीकल्चर बिजनेस जो रन कर रहे हैं? Yes, we are AgriConnect and we are providing services small farmer to vendors. ओके, तो एग्री सर्विसेज क्योंकि प्रोसेसेस पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि इसमें आप एक ऐसी कम्युनिटी के साथ वर्क कर रहे होते हैं जो शायद आपके बिजनेस मॉडल्स को उस तरह से क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं करते। तो आप लोगों के पास प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या प्लान बना हुआ है? आप लोगों ने प्रोसेसेस डेवलप किए हुए हैं अभी से? Yes, sir. अस्सलाम We वालेकुम। जी, अली हुसैन साहब, अभी मैं आपके साथ अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। myself Ali Hussain, founder of AgriConnect। बेसिकली सर AgriConnect एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसके जरिए हम स्मॉल होल्डर फार्मर और सर्विस प्रोवाइडर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाएंगे। जिस तरह से उबर और क्रीम वर्किंग कर रही है, यही मॉडल हम एग्री इम्प्लीमेंट्स में आ रहे हैं। तो ठीक है। इससे ये होगा कि हमारा जो फार्मर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स की वजह से जो परेशान था, इंशाल्लाह इसकी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व आउट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ऐप आप क्या करेंगे इसको मुझे? ऐप के जरिए सर जो स्मॉल होल्डर फार्मर और सर्विस प्रोवाइडर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाएंगे। लाइक किसी फार्मर को अगर फार्म इम्प्लीमेंट्स की जरूरत है, लाइक हार्वेस्टर चाहिए हो, कोई भी उसे ड्रोन वगैरह चाहिए हो, या कोई भी फार्म इम्प्लीमेंट्स की जरूरत हो, तो हम जो है वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर को भी जो है वो रजिस्टर्ड करेंगे, तो ताकि वो इजीली फार्मर जो है वो अपने डिजायर्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स पर जो है वो असेस कर सके। किस लेवल के फार्मर की बात कर रहे हैं आप? अगर रूरल लेवल पे बात करें तो वो सर ऐप यूजर नहीं होता। सर अभी फिलहाल हम जो है वो स्मॉल होल्डर फार्मर को टारगेट कर रहे हैं। स्मॉल होल्डर फार्मर हमारे पास जो कैटेगराइज है वो 12.5 एकड़ से कम रकबा जिसके पास है उसको हम स्मॉल होल्डर फार्मर कैटेगराइज कर रहे हैं। तो ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कारपोरेट सेक्टर में भी मूव करेंगे हमसे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में कितना लोग, आपकी टीम में कितना लोग हैं? सर ह्यूमन रिसोर्स में 1-2 पर्सन है हमारे पास। अच्छा, और ये बताइए कि आप लोगों ने, लेट्स से, आपका ये प्रोसेस हाईली इंडिविजुअलाइज्ड है, यानी फार्मर आपके रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगा या फार्मर सिर्फ ऐप से ही सब कुछ खुद ही कर सकता है? सर इसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे फोकस होगा, क्योंकि उसके ऊपर हम 4 से 5 लोकल लैंग्वेजेस की सर्चिंग रखेंगे और 7 वोकल सर्चिंग होगी। ठीक है। और वहां से वो आपका किसी भी जो जी सर। एग्री की जो इम्प्लीमेंट्स है वो देने वाले पर्सन के साथ, यानी आप बायर और सेलर को एक किस्म का मिला रहे हैं। दैट इज अ मार्केट प्लेस काइंड ऑफ थिंग। जी जी सर, कनेक्ट करवा रहे हैं। जी सर। ठीक है, इससे आपको क्या बेनिफिट और होगा? इसके अलावा सर इसमें हमें बेनिफिट ये होगा कि हम जो हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सर हम कमीशन चार्ज करेंगे अपनी। ठीक है। एग्री एक उससे जी सर, एक उससे कमीशन चार्ज होगी सर। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास सब्सक्रिप्शन होगी ना सर्विस प्रोवाइडर की, उसकी भी कुछ ना कुछ फी रखेंगे हम। अच्छा, आप इसमें और कंसल्टेशन भी दे रहे हैं इनको, फार्मर्स को? क्या आपको ये चीज की जरूरत पड़ सकती है? जी बिल्कुल सर, इसमें हम कंसल्टेंसी भी देंगे और इसके साथ साथ हम जो है ना अपने जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर है उनको ट्रेनिंग भी देंगे फार्म इम्प्लीमेंट्स के लिए। वो भी हमारे रेवेन्यू स्ट्रीम में आ जाएगी सर। या आप और किस इसके लोकेलिटी अलावा में सर काम कर रहे हैं? इसको इसमें जो है वो जी सर। आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। जी सर, इसके अलावा सर हम एग्री कनेक्ट जो है वो एक जी सर, इसके अलावा हम एग्री कनेक्ट को जो है वो
ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग मार्केट भी बनाएंगे इसके फार्म इम्प्लीमेंट्स की। अगर किसी को अपना कोई भी फार्म इम्प्लीमेंट सेल करना हो या परचेज करना हो, वो भी एग्री कनेक्ट से बआसानी हासिल कर सकता है सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछा था आपकी लोकेशन क्या है, लोकेलिटी क्या है आपकी? सॉरी सर, आपकी आवाज मैं पूछ रहा हूँ डिस्टॉर्शन है आप किस एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, किस एरिया के लिए किस एरिया में सर। आप ये इनिशिएट कर रहे हैं? फैसलाबाद से। अच्छा, फैसलाबाद से, ठीक है। बहुत अच्छा जी। जी फैसलाबाद में सर। जी सर। जी ठीक है। ओके, ये बताइए कि ये हैंडीक्राफ्ट्स का जो बिजनेस है, ये भी कोई मौजूद है यहाँ पर? जी क्रॉप जी सर। हैंड हैंडीक्राफ्ट्स। हेलो, जी, हैंडीक्राफ्ट्स का कोई बिजनेस हो? सर अगर आप परमिशन दें तो हम भी एग्री रिलेटेड बिजनेस हाँ हाँ स्टार्ट जी किया है। जी, औरंगजेब साहब आपको बता बिल्कुल दें, बताइए बताइए। एक पार्ट हमारा ये है कि सिटीज़ में जो भी लोग अपने घरों में डिफरेंट डेकोरेशन के लिए वेजिटेबल्स या फ्रूट इस्तेमाल करते हैं ना, लगाने के लिए ग्रासी प्लाट में या अपनी घर की छत पे, तो वो हम किचन गार्डनिंग की पूरी प्रोडक्ट और सर्विस भी दे रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है फार्मर के लिए। फार्मर के लिए उनको हमने मोटिवेट करना है और उनको सारी कंसल्टेंटी भी देनी है। और उनके जो भी रनर्स यूज होते हैं क्रॉप्स में, जिस तरह कॉलीफ्लावर हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई और ओनियन हो गया, चिलीज हो गई, टमाटोज हो गए, बैंगन हो गए, इन भी रनर्स तैयार होती हैं। वो हम उनको स्पेस उन्हीं से लेंगे और सीड वगैरह ओरिजिनल जो सेटिस्फाइड सीड होगा ना, वो हम प्रोवाइड करेंगे और हम उनको एडवर्टाइज भी हम खुद करेंगे एज एग्रेरियन। सारी उनकी प्रिस्क्रिप्शन उनको देंगे। सही है। ये आपका जो बिजनेस है, ये ऐप बेस्ड है? जी सर, ये टेक बेस हमारा जो किचन गार्डनिंग है ये टेक बेस आता है। और वो जो है दूसरा जो पार्ट हमारा फार्मर के लिए ना, वो हम हाफ फिजिकल है और हम उनको अपना कार्ड दे देंगे। ऑनलाइन हमारी कॉल के जरिए वो कांटेक्ट कर सकता है हमारे पास, क्योंकि फार्मर जो है उनके पास ऑनलाइन ये जो सेल फोन है ना, ये ये उनके नहीं पास होता। नहीं, ऐप हम्म, के जरिए हमारे कांटेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से हमने कॉमन नंबर रखा हुआ है, वहां से हमारे साथ वो रब्ता कर सकते हैं। सही हो गया। तो बेसिकली आप लोगों के टीम में कितने लोग मौजूद हैं औरंगजेब साहब? जी सर, मेरी टीम में अभी 4 लोग हैं और इसके साथ साथ अगर हमें मेंबर बढ़ाने पड़ते हैं तो वो एज अ इंटर्न एज अ एम्प्लॉय हायर कर लेंगे। हम एग्रीरियन स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो हम हायर कर लेंगे, उनका आ- इंटरव्यू वगैरह लेके। आपका बिजनेस इस वक्त किस फेज पे है? जी सर। आपका बिजनेस इस वक्त किस फेज पे है? सर इस वक्त हमारा बिजनेस जो किचन गार्डनिंग की है वो सर्विस और प्रोडक्ट स्टार्ट हो गई है। और कुछ हमने रनर्स की भी किया थे, लेकिन उस टाइम सीजन एंड हो रहा था। अभी हमने नेक्स्ट जो हमारा सीजन आएगा ना रनर्स का, उसमें हमने स्टार्ट करना है, फार्मर के साथ लिंक करना है, अभी मार्केटिंग करनी है, उसके बाद हमने स्टार्ट कर देना है। आपकी अभी ऐप जो जो है वो किचन शुरू हो चुकी है? ऐप लॉन्च हो चुकी है? नहीं सर, ऐप लॉन्च नहीं हुई, बाकी जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो एक्टिव हो गए हैं ठीक हो सारे। गया। ठीक है, ठीक हो गया। ओके। ओके, ये इजी लाइफ क्या है? तथीर जो नजर आ रहा है, हेल्थ बेस्ड है? एमन, तथीर, ये इजी लाइफ क्या चीज है? ये जीयू डीजी खान से। चलिए, आई थिंक दे आर नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। आयशा दुरानी, हैंडीक्राफ्ट सिस्टम। जी सर। जी, ये आपका क्या बिजनेस है आयशा? सर हमारा हैंडक्राफ्ट मतलब हैंडमेड जो भी प्रोडक्ट होता है उनको ऑनलाइन सेल करनी है। आप इसको किस तरह से ई कॉमर्स स्टोर बना के बेच रहे हैं या कोई ऐप बना के बेच रहे हैं?
सर थ्रू वेब एप्लीकेशन और सोशल मीडिया पेजेस। ठीक हो गया, ओके, दैट्स जी गुड। सर। तो ये बताइए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं? सर 4। 4 लोग हैं। और आपकी इस वक्त बिजनेस किस स्टेज पे पहुंच चुका है? सर अभी तो मतलब स्टार्टिंग है, कुछ ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं? सर हमारे पास हैंडमेड जो ड्रेसेस होते हैं, बाकी जो हैंडमेड डेकोरेशन का मटेरियल प्रोडक्ट होता है वही सब है। ठीक हो गया, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक जी फॉर सर। दैट। ओके, तो आप लोगों से काफी गपशप हुई, अगर कोई और बोलना चाहता है तो ठीक है, वरना मैं आगे पे प्रोसीड कर रहा हूँ अपने सेशन के साथ। अब मैं आपसे प्रोसेसेस के हवाले से, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा जो जो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर फर्दर मोर कोई सवाल होंगे तो हम उन पे गपशप करते रहेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के जो बिजनेसेस हैं दे आर ऑल वेरी वेल। जितनों से मेरी बात हुई है मुझे बड़ा अच्छा लगा है। कुछ को मैंने लिखा है कि उनके साथ फर्दर में कम्युनिकेशन भी रहे। तो यहाँ पर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप लोग जब अपने बिजनेस को इनिशिएट कर रहे होते हैं, जो बिजनेस है दैट इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर ऑफरिंग इनटू द मार्केट। इसको आपको ये भी देखना है कि हर चीज को ऑटोमेट करना जरूरी है। कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस वो होता है जिसके अंदर जो सबसे सियाना शख्स होता है वो बॉस नहीं होता। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। इफ अगर आप अपने बिजनेस में सबसे सियाने शख्स हैं, जो फाउंडर्स हैं वो सबसे ज्यादा सियाने हैं, तो आपके बिजनेस को खतरा है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा कि आप अकेले पर्सन जो है he should not be the smartest. What you need to do, you need to find people smarter than yourself, and that is an important aspect. Second चीज, we need to build up certain processes जिनके जरिए आपका बिजनेस जो है वो एक्सपैंड करे। आपने अपने बिजनेस में प्रॉपर फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स जरूर रखने, चाहे आपके पास उसकी ह्यूमन रिसोर्स अभी है या नहीं है। आप एक ही पर्सन को मल्टीपल टास्क दे सकते हैं, पर आप लोगों के पास मल्टीपल फंक्शनिंग डिपार्टमेंट्स होना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, यू मस्ट हैव अ प्रॉपर HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट जो है वो आपकी लिए राइट काइंड ऑफ पीपल सर्च करे, ये जरूरी है। नंबर सेकंड थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप अपनी जो बिजनेस है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट सेट करें। आपके पास बिजनेस वायबिलिटी ऑप्शंस होना जरूरी है कि आप कल को फंडिंग कहाँ से लेंगे, अपने फाइनेंसेस को एलोकेट कैसे करेंगे, और अपने बिजनेस में आप किस तरह से ग्रो करेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ को मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कई सारे वेंचर्स जो हैं वो इस सोच से आते हैं कि हम अभी बिजनेस शुरू कर लेते हैं और हमें अभी पैसों की परवाह नहीं, अभी हमें सिर्फ यह है कि हमारा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए। इस तरह से कभी बिजनेस जो है वो वर्क नहीं करता। What we need to do is we need to understand this, that any activity done to generate profit is known as business. I'm not here talking entrepreneurship, क्योंकि entrepreneurship वो होती है जहां पर हम कोई बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके आ रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर्स का भी जो मेन एम है वो ग्रोथ है फाइनेंशियली। तो आप इस चीज को जहन में रखिएगा that you need to focus on your finances. If you are not focused on your finances, you are not doing your business right. ठीक है, हम सोशल एंटरप्राइज अगर किसी की है तो वो एक अलग कहानी है कि वो लोगों की हेल्प कर रहा है या, लेकिन आप लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका मॉडल फाइनेंशियल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक और बात है वो जरूरी है, देखें हम मार्केटिंग एंड सेल्स, इसको जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, आप में से कितने लोग जो हैं उनको फनल्स का पता है, मार्केटिंग फनल्स का, और क्या आप में से कोई फनल्स को यूज भी कर रहा है? एनीवन? यस सर। ये भी कौन बोले? आयशा बोली। जी सर, मार्केटिंग फनल्स जो होते हैं वो ये होता है कि अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। उसके बाद जो अगर आपने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है तो फिर आपने ऑडियंस के लिए इंटरेस्ट पैदा करना अपने प्रोडक्ट के लिए।
अगर आपने इंटरेस्ट पैदा कर दिया तो इसकी डिज़ायर को मद्देनजर रखते हुए आपने लेकर चलना होता है अपने जो कस्टमर होते हैं। अगर आपने उनकी डिज़ायर को भी पूरा कर दिया फिर आपने एक्शन लेना होता है, मीन्स कि आपने उनको अपना पक्का कस्टमर बना लेना होता है। ये मार्केट। ओके, तो अभी आप लोगों को ये पता होना चाहिए बिल्कुल कि कस्टमर अवेयरनेस और कस्टमर इंटरेस्ट जो है उसको इंड्यूस करने के लिए मार्केटिंग फनल्स यूज होते हैं। अभी फनल में एक चीज बहुत जरूरी है वो ये है कि हाउ यू विल बी कैप्चरिंग योर इंटरेस्टेड कस्टमर। कस्टमर को आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और उस अट्रैक्शन के लिए एक प्रोसेस डेवलप करें उसमें कि आप लोग एक दिन में या एक महीने में कितने क्लाइंट्स तक, कितने कस्टमर्स तक रीच अपनी बढ़ाना चाहते हैं, इसको प्लान करें। दूसरी चीज ये है कि व्हेन यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, आप इस तरह की मार्केटिंग करें कि आपको सिर्फ एक दफा एक टूल को मार्केट में फैला देना है, उसके बाद लोग खुद आपके पास आने शुरू हो जाएं। ठीक है। और तीसरी चीज ये है कि फनल के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक जिस तरह से यूज करते हैं, तो ईमेल्स के जरिए रेगुलर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। असल चीज ये होती है कि व्हेन यू अट्रैक्ट द कस्टमर, you grab them. When you grab them, you generate a sale. हमारा मेन टास्क क्या होता है किसी भी फनल की टेक्निक को यूज करने का कि हम अल्टीमेटली सेल्स की तरफ जाएं, अपने लीड को मैच्योर करें। अच्छा, उसके बाद जो चीज आपको जरूरी चाहिए वो क्या है कि इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो सेल्स की टीम है वो अपना बहुत सारा टाइम जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है इस चीज को मॉनिटर करने में कि हम कैसे रीच अपनी डेवलप करें। इसलिए आपको प्रोसेसेस में इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका मार्केटिंग और सेल्स का सेगमेंट सेपरेट हो। दे आर इंटरलिंक्ड, बट मार्केटिंग और सेल्स के लोगों को अलग-अलग टास्क दीजिएगा। ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिजनेसेस मार्केटिंग की टेक्निक्स में सेल को इग्नोर कर जाते हैं और बहुत सारे लोग सेल्स करने के लिए मार्केटिंग को इग्नोर कर जाते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि यू शुड कीप बोथ ऑफ देम सेपरेटली। अगर एक टीम जो है वो आपका सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रही है, वो आपको लीड्स जनरेट करके दे रही है, तो अगली टीम जो है उसको सेल्स पे फोकस करना जरूरी है। दे शुड फोकस ऑन टर्निंग दोज लीड्स इनटू एक्चुअल सेल्स। एंड यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज की भी जरूरत होती है, मेंटेनिंग द राइट काइंड ऑफ ड्राफ्ट्स। जैसे आपने कोई सेल जनरेट की है, आपके कस्टमर को ये पता हो कि मैंने अब इस बिजनेस से परचेज कर लिया है या इस बिजनेस से बिजनेस कर लिया है, अब मुझे इससे आफ्टर सेल सर्विस भी मिलेगा, मेरा आगे इससे नेक्स्ट टाइम जो है एक रिलेशनशिप जो है वो बरकरार रहेगा। फिर उसके बाद एक चीज आती है दैट इज मैनेजिंग फाइनेंसेस। फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि एवरी एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, अच्छा, फाइनेंसेस बताने से पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। आप में से कोई बता सकता है कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में क्या डिफरेंस होता है? I'm sorry, मेरी एक बुरी आदत है, मैं अकेला बोल के बोर हो जाता हूँ, तो इसलिए अगर आप लोगों में से लोग कोऑर्डिनेट करेंगे तो आई लव इट। ये सर आई वुड लव टू, जो मेरा आइडिया है सर, मैं गलत हो सकता हूँ बट जितना मुझे समझ आता है ना, अकाउंट इज सिंपली हम बुक कीपिंग करते हैं कि जिस तरह हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, जिस तरह से हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है कि हम अभी क्या लगा रहे हैं और क्या इन और आउट कैश फ्लो क्या हो रहा है। ठीक है। फाइनेंस इज डिफरेंट। फाइनेंस में ये होता है कि हमने किस तरह से अपने बिजनेस को फाइनेंस करना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। सो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स और बॉन्ड्स वगैरह उन चीजों से रिलेट करता है, डेट वगैरह। बेसिकली फाइनेंस का मकसद होता है कि आप अपने आने वाले पैसे को किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, ये है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ये देखता है कि आप किस पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या किस पोर्टफोलियो के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। जबकि अकाउंटेबिलिटी इज सिंपली जो हो चुका है उसका हिसाब रखना। अब बहुत सारे बिजनेसेस में ये मसला आता है कि वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के नाम पे एक अकाउंटेंट हायर कर ले कि जी हमारा दोस्त है, उसने बीएस अकाउंटिंग की हुई है, चलो जी हमने उसको हायर कर लिया।
ठीक है, ऐसा नहीं है, खैर बीएस वाले तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो छोटे बीए करके या अकाउंटिंग करके कोई पर्सन जिसको लगे कि जी मैं हिसाब 4 2 + 2 4 कर सकता हूँ, आप उसको अपने इदारे में जॉब रख दें, तो दैट इज नॉट इनफ। व्हाट यू शुड डू इज फाइनेंसेस और अकाउंट्स को सेपरेट रखिए। मैं इसका आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि देखिए, देर आर 3 लेवल्स इन एनी बिजनेस। सबसे ऊपर होता है स्ट्रैटेजिक लेवल, दूसरा होता है ऑपरेशनल लेवल, तीसरा होता है टेक्टिकल लेवल। ठीक है, बेसिकली आप लोग चूंकि टेक बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, इसलिए इतनी बड़ी हायरार्की जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है, 3 4 लोगों से भी ये काम चल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्ट्रैटेजिक लेवल के ऊपर फाइनेंस आता है। ठीक है, जब आप स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं तो उसके अंदर फाइनेंस को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि किस किस जगह ये पैसे इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर मार्केटिंग के लिए आपको बजट चाहिए, उस बजट को डिस्कस किससे करना है? आपने अपनी फाइनेंस टीम से करना है। उसका अकाउंटेंट से बैठ के नहीं डिस्कस करना, क्योंकि अकाउंटेंट तो आपको बताएगा क्या हुआ था, क्या होना है की प्लानिंग जो है वो आप अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से करेंगे, फाइनेंस के लोगों से करेंगे। ठीक है, देखिए अभी मुझे आप मेरे साथ बातचीत कीजिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट आई एम टेलिंग यू इज इट रेलेवेंट और नॉट। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि जो हम जिन लोगों से बात कर रहे थे फिजिकली, अगर मैं आपके सामने होता तो मैं आप सब लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस देख रहा हूँ, आप लोगों को जान रहा हूँ कि आपको कैसा मेरी बात से महसूस हो रहा है। ठीक है, आई एम मोर ऑफ अ फिजिकल ट्रेनर, तो ये ऑनलाइन पे मुझे थोड़ा सा ये होता है कि लोग मुझसे कम्युनिकेट करें। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है, या मेरी बात आपके अंडरस्टैंडिंग के आपके मुझे तो ये चीजें पता है, मुझे कुछ नया बताओ। अगर ऐसा है तो आई वुड बी टेलिंग यू समथिंग ऑन एन एडवांसर स्केल। तो मुझे अपना स्केल बताइए प्लीज। डियर टीम, आई एम वेटिंग। जी, Yes, sir. We would love for you to go to a little bit advanced stage. ऑन एन एडवांसर स्टेज, ओके। अच्छा, देखिए हम बिजनेस प्रोसेसेस में एक चीज ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि जब भी मैं अपने बिजनेस में कोई एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, मैं अपनी हर प्रोडक्ट को एज अ प्रोजेक्ट लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन होता क्या है इससे कि मैं अपनी हर प्रोडक्ट को ओन करता हूँ मैक्सिमम। अभी मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ, मैंने एक स्टार्टअप को फैसिलिटेट किया। मेरी फैमिली में एक बच्चे ने कहा जी मैंने प्री लव्ड शूज का स्टार्टअप जो है वो शुरू करना है। तो मैंने उसको कहा कि तुम ये टेक्निक्स जो है इस्तेमाल करो। तो उसको मैंने सबसे पहली बात की कि जब भी तुम एक शू मार्केट में लॉन्च करो तो टेक इट एज अ प्रोजेक्ट इटसेल्फ। तो उसने कहा इस तरह बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा हमारा, हम अगर एक एक अपने प्रोडक्ट को एज अ प्रोजेक्ट लेंगे तो हाउ विल वी मैनेज इट? बट दिस इज समथिंग दैट विल मेक योर बिजनेस अ वेरी प्रोमिनेंट लुकिंग। ये गुची है, ये अरमानी है, ये फैशन ब्रांड्स जो बड़े बड़े हैं, ये कैसे अपनी ब्रांड्स को इतना ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं? वो अपने हर प्रोडक्ट लाइन को, अपनी हर प्रोडक्ट को एज अ प्रोजेक्ट। यही चीज अब बहुत सारे आप में से वेंचर्स हैं जो एक प्रोडक्ट फोकस्ड है। ठीक है, वन प्रोडक्ट फोकस्ड जो है, अब उनको क्या करना चाहिए कि वो अपने हर क्लाइंट को एज अ प्रोजेक्ट, अपने हर क्लाइंट को एज अ प्रोजेक्ट किस तरह लिया जाता है? प्रोजेक्ट 2 किस्म के होते हैं, एक माइक्रो प्रोजेक्ट्स, एक मैक्रो प्रोजेक्ट। जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स हैं उस तरह से लें कि एक आपके पास कस्टमर आया, आपके पास कस्टमर की डिटेल आ गई कि दिस इज काइंड ऑफ द कस्टमर दैट आई एम डीलिंग विद। Secondly, see what they are asking, inquiring for. If they are inquiring for, ये खास तौर पे जो B2B businesses हैं उनके लिए मैं ये suggest करूंगा that they should focus on that. And
काइंडली वेट कीजिएगा, बस स्पीकर उनका मेरा ख्याल इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है, तो वो भी थोड़ी देर तक ज्वाइन कर। Yes. Well, hello, everyone. Okay. So what I was talking about कि जब हम business processes में चल रहे होते हैं, अच्छा अब एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जब पूरा स्ट्रक्चर बन गया, आपने अपना गोल्स को आइडेंटिफाई कर लिए, आपने अपने डिपार्टमेंट्स को सब डिवाइड कर दिया, सबके टास्क जो हैं वो प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश हो गए। अब हमने परफॉर्मेंस मेजरमेंट की तरफ आना है। अब जब हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करते हैं, आप में से किसी ने केपीआई का नाम सुना है कभी कि केपीआईज क्या होते हैं? यस सर, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, हर पर्सन का जब रोल आइडेंटिफाई हो जाता है, उस रोल के आइडेंटिफिकेशन के बाद यानी आपका गोल बन गया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स डेवलप हो गए। गोल डेवलप होने के बाद आपने टीम हायर कर ली, टीम हायर करने के बाद हर टीम के अपने अपने सेगमेंट्स आपने डिटरमिन कर दिए। अब हर डिपार्टमेंट को एक गोल दे दिया जाए, एक टारगेट दे दिया जाए। जैसे मैं आपको कह रहा था कि हर क्लाइंट को एज ए प्रोजेक्ट लीजिए, उसी तरीके से आपका हर डिपार्टमेंट जो है उसका एक अलग अलग टास्क होना चाहिए जो उसने अचीव करना है। इसको थोड़ा सा इस तरह से बताना चाहिए कि जब एक टूर अरेंज हो रहा होता है, तो टूर अरेंज करते वक्त क्या होता है कि एक पर्सन जो है वो कहता है जी आप कार का अरेंजमेंट करें, दूसरा कहता है कि जी आप मैं खाने का अरेंजमेंट कर लेता हूँ, तीसरा कहता है मैं रिहाइश का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। हर पर्सन जो है वो रेलेवेंट कैपेसिटी में रहते हुए कुछ ना कुछ गोल को अचीव कर रहा होता है। आपके बिजनेस में ये चीज भी होना बहुत जरूरी है कि आपके हर डिपार्टमेंट को पता हो कि उसका इंडिविजुअल रोल क्या है। तो इंडिविजुअल रोल्स को एनालाइज करने के लिए हम केपीआईज एस्टैब्लिश करते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं जो हर डिपार्टमेंट को दिया जाता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं उनको हम हर 3 मंथ्स के बाद मॉनिटर करते हैं, उनकी मीटिंग करते हैं, या 6 मंथ्स के बाद या 1 ईयर के बाद उनको हम एनालाइज कर रहे होते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। हमें पता चलता है कि जी मिसाल के तौर पे हमने मार्केटिंग को गोल दे दिया कि आपने रीच जो है इस साल इस 3 महीनों में 5000 कस्टमर्स तक हमारी रीच डेवलप करनी है। अब क्या हुआ कि जब आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि ओके क्या आप लोगों ने 5000 लोगों को रीच किया। फिर आप पूछेंगे क्या व्हाट वाज द मोस्ट
effective strategy that helped you reach 5,000 customers. अब अगर 5,000 कस्टमर्स रीच हो गए तो वेल एंड गुड. हम नेक्स्ट जो टारगेट बनाएंगे अगले 3 महीने का वो मोस्ट प्रोबेबली 10,000 पीपल तक की रीच डेवलप करने का होगा या उससे कम, यानी उससे 5,000 से ज्यादा का नंबर होगा. और उसके बाद अगर वो कहें कि नहीं हम इस 3 महीने में 5,000 लोगों तक रीच नहीं बढ़ा सके, तो आप देखेंगे कि व्हाट द रीजंस कि आप रीच नहीं बढ़ा सके. तो आप रीजन को एनालाइज करेंगे, उसके बाद टारगेट रीसेट करेंगे 5,000 का और इस दफा स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे. ठीक है. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स किसी भी बिजनेस की प्रोसेस की इवैल्यूएशन के लिए बेस्ट प्रोसीजर. आप लोगों को अपने हर डिपार्टमेंट को की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एस्टैब्लिश करके देने चाहिए. इसका मैं एक आपको फॉर्मेट जो है अभी दिखाता हूँ. ठीक है. लेट मी गो इनटू दैट. Just a second. Key performance indicators का एक प्रॉपर फॉर्मेट है and I'll show it to you. उसमें इनिशियली होता यह है कि एक साइड पे हम लिखते हैं बिजनेस टास्क, दूसरी साइड पे हम लिखते हैं कि व्हाट वाज बजटेड, फिर हम लिखते हैं व्हाट इज एक्चुअल, और उसके बाद फिर हम ये बताते हैं कि व्हाट वर्क एंड व्हाट डिड नॉट, और उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर का टारगेट जो है वो इसमें सेट करते हैं. इसमें मैं पीपीटी को ओपन कर दूं. ये प्रोजेक्ट टाइमलाइंस. आई डोंट नो, ये आप लोगों के लिए काफी एडवांस हो जाएगा अभी. ये एक छोटा सा मैं स्क्रीन शेयर करूं. ओके. इसमें एक छोटा सा ये सेगमेंट है कि हम इसमें की रिजल्ट एरियाज को देख रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम रिक्रूटर कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं. इसमें की केपीआई क्या है कि हायर इनोवेटिव ग्राफिक डिजाइनर्स. ठीक है. अब इसमें वेट ऑफ केपीआई में कि हमने कितने लोगों को हायर करना है, किस किस कैलिबर के. ठीक है. यूनिट क्या है, टारगेट हमने 6 करने थे, एक्चुअल में हमने 3 कर सके, स्कोर है 50%. तो मतलब ये एक छोटा सा मैंने एक रफ सा ड्राफ्ट बनाया. इसमें मैं आप लोगों को शेयर करूं. ओके. तो केपीआईज जो होते हैं बुनियादी तौर पे, उसके अंदर आप लोगों ने टास्क को सेट करके एक्चुअल वर्सेस बजटेड को देखना होता है. आप लोगों में से किसी ने अभी तक केपीआई एस्टैब्लिश किए? Yes, sir, we did. And how did you do that? Sir, I actually हमने मंथली डिवाइड किया था और उसको फिर क्वार्टरली डिवाइड किया था. केपीआईज को मंथली केपीआईज अलग थी, क्वार्टरली अलग थी. अब बिकॉज हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है तो उस साइड पे नहीं जाते, लेकिन हम अपनी मार्केटिंग साइड पे जो हमने केपीआईज डेवलप की थी वो ये थी कि हम चाह रहे थे कि एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास
5000 इंस्टाग्राम के सब्सक्राइबर हो, हमने बेस्ड ऑन द फॉलोअर्स एंड बेस्ड ऑन द रीच उसी तरह से हमने डिवाइड किया था। और यूट्यूब पे हमने टिकटॉक पे अपना प्रेजेंस बनाया कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हम टिकटॉक पे कहाँ पर खुद को देखते हैं, यूट्यूब पे कहाँ पे खुद को देखते हैं। तो इसी तरह हमने रीच और फॉलोअर्स के बेस पे अपने KPIs बनाए। ठीक हो गया। क्या आपने इसको KPIs का एक कंट्रोल भी होता है? कंट्रोल से मुराद ये है कि आपने स्ट्रैटेजीज भी अपनी नोट डाउन की कि क्या मैं पोस्ट कर रहा हूँ? हाँ, और एग्जैक्टली सर, हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई थी। इन द फर्स्ट मंथ हमारा ये था कि मतलब जहाँ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के कि हम डेली पोस्टिंग करेंगे। बट जो हमारे पहले मंथ का इनिशियल KPI था, वी डिडंट अचीव दैट। देन व्हाट वी डिड इज वी चेंज आवर स्ट्रेटजी। हमने डिफरेंट ब्रांड्स को ऑर्गेनाइज किया जो हु आर डूइंग प्रीटी वेल इन द इंस्टाग्राम एंड फेसबुक स्पेस। हमने उनको एनालाइज किया एंड उसके बेस पे हमने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। अभी आई थिंक अगेन वी डिडंट अचीव और द टारगेट जो कि हमने सेट किया था अपने लिए। मे बी वी वर जस्ट लाइक हमने ज्यादा बड़े बड़े टारगेट्स रखे थे इनिशियली, बट आई थिंक दैट्स द रोल ऑफ अ स्टार्टअप कि हम बहुत बड़ा ख्वाब देखते हैं, फिर उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर देन वी चेंज आवर स्ट्रेटजी अगेन फॉर द थर्ड टाइम, और इस दफा फिर हमने रील्स की तरफ ज्यादा फोकस की कि हम रील्स पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे। आई थिंक व्हिच इज वर्किंग क्वाइट वेल फॉर नाउ। That's amazing. That's actually great. So the most important thing here is that you have, मेरे ख्याल से 45 लोग जो ऑनलाइन है उसमें मुश्ताक साहब से ही सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है। बाकी स्टार्टअप्स को क्या हुआ है? क्या उदास हैं, दुखी है, रोजा लग रहा है? तो मैं चाहूंगा कि बाकी स्टार्टअप्स कम ऑन टॉक टू मी। अच्छी कन्वर्सेशन के लिए आप लोगों के साथ यहाँ आया हूँ, तो गपशप करेंगे तो और ज्यादा नॉलेज मैं आपको दे पाऊंगा। इस तरह तो मुझे लग रहा है कि बस वो एक साहब हैं उनसे गपशप चल रही है, चलो अच्छी बात है। आप लोग जो है देखिए, मकसद मेरा यही है कि देखिए प्रोसेसेस की बात करें। ये कोई मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, क्लास का लेक्चर नहीं दे रहा कि मैं आपको कहूँ कि जी बिजनेस प्रोसेस स्ट्रेटेजी में 3 चीजें होती हैं, आप इन चीजों को कर लो। मुझे आप लोगों से एक्चुअल फॉर्मेट्स पे बात करें। मैं आप लोगों के बिजनेसेस को एक्चुअल लेवल पे गाइड करना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल लेवल के ऊपर। सो दिस इज व्हाई आई नीड यू टू कनेक्ट विद मी एंड यू नीड टू टॉक टू मी। सब्जेक्ट पढ़ाने से मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा लेता हूँ, बहुत आसान हो जाता। तो आई वाज टीचिंग एट यूनिवर्सिटी बट आई लेफ्ट इट ओनली बिकॉज कि किताब की बात तब तक वैलिड होती है जब तक हम सिर्फ थ्योरेटिकली लर्न करें। आप लोग प्रैक्टिकल लोग हैं, आप अपने प्रैक्टिकल सिनेरियोस पे बात करेंगे, हम प्रैक्टिकल सिनेरियोस में इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। मेरी नजर में KPIs एस्टैब्लिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन KPIs को एस्टैब्लिश करने से पहले जो बेस वर्क है वो बहुत जरूरी है। आप लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे काम करके आप लोगों ने किया हुआ है, ऑफ कोर्स, ठीक है। अपने टास्क को रीडिफाइन करके प्रॉपरली एलोकेट करें सबको, उनके हर डिपार्टमेंट का अलग अलग गोल बने और हर आपके सेगमेंट को पता हो कि उसने क्या अचीव करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल विजन और मिशन जो है उसकी तरफ आपने रूल करना है। तो जिस तरह अभी मुश्ताक साहब ने बताया कि हम KPIs पे काम कर रहे हैं, KPI का इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग के लिए KPI बहुत अच्छी स्कीम है, और KPI सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं, KPI आप हर चीज के लिए बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी कंपनी की बात करता हूँ तो हम KPI इवन बाइंग के लिए भी सेट करते हैं। अगर हम कुछ यूनिट्स परचेज कर रहे हो, मैं थोड़ा सा अपना बिजनेसेस के बारे में बताता हूँ। इनिशियली आई वाज टीचिंग एट यूनिवर्सिटी अर्लियर, और साथ साथ मैं अपनी ट्रेनिंग कंपनी रन कर रहा था वीसॉल्व 360। लेकिन पास्ट 8 मंथ्स पहले मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से क्विट किया एंड आई स्टार्टेड अ कंपनी नेम ईगो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की एक कंपनी है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और सेकेंडली ऑफ कोर्स एज आई एम अ ट्रेनर, तो मैं ट्रेनिंग्स पे भी काम कर रहा हूँ काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इस वक्त कि मैं ईगो को किस तरह से काम करवा रहा हूँ। अभी आजकल मार्केट में बहुत सैचुरेशन है, वी ऑल नो दैट, बट आई एम बाइंग व्हीकल्स फ्रॉम चाइना एंड वेरियस प्लेसेस जहाँ पर
लोग लोकली भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैं उन प्रोडक्ट्स को भी स्टडी कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेज पे हैं, उनको स्टडी करके अपने एक लेवल पे जो हमने एक बेंचमार्क बनाया क्वालिटी का, हम उस तक लेके आके फिर उसको मार्केट में लेके आएंगे। अभी हम R&D की स्टेज पे हैं एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि अपनी ब्रांड जो है उसको हम थोड़ा सा बेहतर करके मार्केट में लॉन्च करें। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम बाइंग करते वक्त KPI सेट करते हैं, हम अपने लोगों की हायरिंग करते वक्त KPI सेट करते हैं। हम जब किसी बिजनेस को, मैं कई सारे स्टार्टअप्स को मेंटोर करता हूँ, जब मैं उनकी मार्केटिंग कहता हूँ तो हम उसकी KPIs बनाते हैं। जब हम ऑनलाइन किसी बिजनेस को प्रोपेगेट कर रहे हैं, यानी नॉट ओनली जस्ट मार्केटिंग, ऑनलाइन भी उसके जो रेजोनेंस क्रिएट करनी है उसके भी हम KPI सेट करते हैं। ठीक है, आप में से किसको लगता है इस वक्त, मैं मुश्ताक साहब के अलावा पूछना चाहूंगा, किसको लगता है कि उसके बिजनेस पे KPIs एडजस्ट नहीं होंगे? एनीवन? while I was teaching at university, तो क्या होता था, हम ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे स्टूडेंट्स ले रहे होते थे, तो वो क्या कहते थे कि जब लेसन चल रहा होता था वो उसको चला के मोबाइल पे इंस्टाग्राम स्वाइप अप कर रहे होते थे। ठीक है तो अभी मुझे लग रहा है कि मेरा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है और सब लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख रहे होंगे। अच्छा, ये भी तो सर जी, हेलो जी जी, आई एम लिसनिंग। सर, मुझे लगता है KPI के बगैर आप कोई बिजनेस नहीं चला सकते। तो ऐसा कोई बिजनेस है नहीं जिसमें आपको KPI की जरूरत ना पड़े आजकल के दौर में, जब डिजिटल का दौर है। तो दनियाल साहब, आपका क्या बिजनेस है? सर मैं चेंज टेकर में फाउंडिंग टीम में, तो हमारा भी मतलब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हमारी, तो हम भी ये सारा देखते हैं कि एड एक्सपेंसेस वगैरह। तो अगर आप मॉनिटर नहीं कर सकते बिजनेस, KPI क्या करती है, हमारे बिजनेस से मीटर कर रही होती है, क्योंकि हमारे पास एंड पे ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट एंड पे आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो दनियाल, अभी आपका बिजनेस किस स्टेज पे है? सर अभी ना मतलब कि हमने सिर्फ एक ऑर्डर ही किया अभी तक, और हम ग्रोइंग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वी विल ग्रो इंशाल्लाह। बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा अपने। सर हमारा P2B पोर्टल है, मतलब हम टेक्सटाइल्स में डील करते हैं ज़्यादातर, कि हमने स्मॉल जो मीडियम इंडस्ट्री है उसको हमने इंटरनेशनल एक्सपोजर देना है। टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री हमारे पास फैसलाबाद में, आप उसको इंटरनेशनली मार्केट कर रहे हैं? हाँ जी, इंटरनेशनली कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ताकि जैसे हमारे पास यहाँ पे ज़्यादातर जो है ना वो बड़ी फैक्ट्रीज है, उन्होंने सारा ऑर्डर रखा हुआ है, तो वो छोटी मार्केट में एक्सपोजर आ ही नहीं रहा बोला, तो हम वो छोटी मार्केट को वो एक्सपोजर देना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास, हमारे पास कोई बाहर से ऑर्डर आता है तो हम छोटी मार्केट से तैयार करवाएंगे एज कम्पेयर टू मिल्स के पास टाइम। ओके, ये तो अच्छा। आपके बिजनेस का क्या नाम है? चेंज टेकर। चेन स्टिकर, ओके। और इसको आप किस तरह से एग्जीक्यूट कर रहे हैं? ऐप बेस्ड है या? हमारी वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, वेबसाइट, इंस्टा, फेसबुक। जबरदस्त, चलिए तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह दानियाल आसिफ। तो दानियाल, ये बताइए कि अभी आप लोगों ने KPI सिर्फ अपनी मार्केटिंग पे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं या आपने और भी अपने प्रोसेसेस पे? फिलहाल टीम छोटी है तो मार्केटिंग पे फिलहाल। आपने अपनी हर टीम को गोल सेट करके दिया हुआ है कि आपके टीम फिलहाल हम तीन चार लड़के बंदे हैं हम, तो बस हम फिलहाल हमारा वो मंथली बेस्ड टास्क चल रहे हैं, वीकली बेस्ड मोस्टली। वीकली बेस्ड। तो आपके जितने टीम मेंबरान हैं उनका अलग अलग टास्क है या सब एक ही टास्क है? अलग अलग टास्क, तो वो सब अलग मिलके अलग टास्क करेंगे तो कैसे होगा। नहीं, ये पूछना जरूरी था। अच्छा, अलग अलग टास्क कर रहे हैं तो सबको ये पता है कि अलग अलग क्या क्या अचीव करना है? वो टारगेट दिया ना, अगर जो हमारा सोशल मीडिया का बंदा है उससे कहा हुआ है आपने 500 फॉलोअर करने इंस्टाग्राम पे इस मंथ के एंड तक। ठीक है, ठीक है, वो और जिस अकेला टाइम, उसमें लग। हाँ वो अकेला उसमें लग गया। एक बंदे को काम दिया कि आप मार्केट में जाओ, वहां पे जाके बंदे ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल बेड शीट का ऑर्डर, तो मैं बेड शीट वाले बंदे हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड हो, हमारे पास ऑर्डर, हम फोन करें और हम सारा कुछ कर लें। ठीक है, बेहतरीन। और आपका क्या टास्क है? सर जी मैं वो मार्केटिंग वाला बंदा जिससे मार्केट में जाना है। बेहतर है, जबरदस्त हो गया दानियाल। आप बेस्ट विशेस फॉर योर वेंचर, और ये अल्लाह करे कि बहुत अच्छा चले आपके ये। आमीन। तो
चलिए, बेसिकली मेरा आज का मकसद यही है। मैं आपको एक स्लाइड जो है वो शेयर कर दूंगा बाय द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, आप सब लोग जो ये मैंने अभी क्योंकि स्लाइड नहीं दिखाई, अभी मेरा मकसद था कि मैं आप लोगों के साथ जरा कम्युनिकेट करूं, थोड़ा सा जानूं जो ये बेसिकली होता क्या है, बिजनेस वैल्यू जनरेशन या बिजनेस प्रोसेस जनरेशन, इसकी मैट्रिक्स एक बनता है, मैनेजमेंट क्या होती है इसकी। मैं आपको स्लाइड जो है वो तला साहब को भेज दूंगा, तला साहब जो है वो इसको प्रोपेगेट करवा देंगे। ठीक है, तो अगर अभी किसी का कोई सवाल है आज के सेशन में तो मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिव अगर मुझे ऑडियंस मिले तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आप लोगों तक बात पहुंचा सकूं। हाँ, वो किताबी बातें जो है वो मैं आपको स्लाइड की सूरत में भी शेयर कर दूंगा, वो आप देखें, उससे जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहें वो ले लीजिएगा। दैट्स इट। तला साहब, ओवर टू यू, आप कुछ कहना चाहें या कोई और मुझसे कोई सवाल? वालेकुम अस्सलाम। सर, हम लोग हैंडीक्राफ्ट सिस्टम से हैं कि बेसिकली हम लोग मतलब फॉरेन मार्केट के साथ भी कनेक्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक जैसे है। वहाँ हमारे जैसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो वहाँ ज्यादा डिमांड में भी होते हैं और उनके लिए ये चीजें यूनिक भी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि किस तरह से हम वहां तक रिलेट करें। जैसे हमने सोशल मीडिया के थ्रू भी कुछ पेजेस वो किए हुए हैं, तो एक प्रॉपर वे नहीं मिल रही कि किस तरह से हम वहां से भी क्लाइंट लें अपने। किस कंट्री को फोकस कर रहे हैं आप? सर बेसिकली यूएस वगैरह। यूएस को। तो देखिए, देयर आर टू वेज। सबसे पहला तो वे होता है कि आप अपना कोई भी जो चैनल वो यूज करते हैं ज़्यादा। मैं एक मिसाल लेता हूँ, एक बड़ा फेमस प्लेटफॉर्म है अमेजोन का। ठीक है, वो यूएस यूके में बड़ा मशहूर है। ठीक है, आप उनके ज़रिए उन तक रीच डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और उधर से जो देखिए, जब मार्केट प्लेस की बात आती है ना, तो वी शुड ऑलवेज सेल इन द मार्केट प्लेस where the specific client exists। ठीक है, उसकी दूसरी स्टेज, दूसरा तरीका होता है फनल मार्केटिंग। आप अपनी ब्रांड की जो है वीडियोस, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी वीडियोस बनाना शुरू कीजिए। वीडियोस बनाने के बाद आप उसको एड्स में, और जो आपको पता है द प्रोसेस जो बूस्ट करके आप उसको मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग करें। उसकी डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त आपने क्लिक के ऊपर एक फॉर्म लगाना है, जहां पर आपके जो क्लाइंट है वो अपना ईमेल एड्रेस या फोन नंबर ऐड करें। उसको कोई छोटा सा गिव अवे दें, कोई ई बुक दे दें, या आपके जो ब्रांड है उसका कैटलॉग दे दें। मिसाल के तौर पे मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो को अंदर मैंने क्लिक किया तो वो मुझे कहता है टू गेट द कंप्लीट कैटलॉग ऑफ आवर प्रोडक्ट्स प्लीज एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब क्या हुआ, मैंने उसको क्लिक किया, अपना ईमेल एड्रेस डाला, तो मेरे पास वो कैटलॉग डाउनलोड हो गया। मेरे पास एड ऑन क्या आया, मेरे पास आपका कैटलॉग आ गया, मैं देख सकता हूँ। आपके पास क्या आया, आपके पास उस क्लाइंट का ईमेल एड्रेस आ गया, जिसको आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड से अवेयर कर सकते हैं और कल को वो आपसे कनेक्ट भी कर सकते हैं अगर उसको कोई डील पसंद आती है। क्या आपने ये स्ट्रैटेजी पहले सुनी है इस तरह से? जी सर, वो सुना हुआ है अमेज़न की रीच के लिए। सर वो फिर फंड्स वगैरह भी तो जरूरी हैं। नहीं, मैं अमेज़न की बात नहीं कर रहा, इसको दोबारा से सुनिएगा। इसके लिए देखिए, फंड्स तो हर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में आपको थोड़े से पैसे डालने पड़ेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अमेज़न हियर। मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें वीडियो बेस्ड। ठीक है, आप आपके प्रोडक्ट क्या है बेसिकली? हैंडीक्राफ्ट सिस्टम। सर बेसिकली हमारे पास क्लॉथ लाइन है, क्रोशिया के वर्क के साथ डेकोरेशन पीसेस हैं और वुडन में है। जी दानियाल साहब, एक मिनट में इनसे, अच्छा, इसकी आप जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं इनकी इंडिविजुअल वीडियोस बनाकर अगर आप इनको मार्केट करने के लिए एक कैटलॉग सा बनाइए, उस कैटलॉग को आप प्रॉपरली डिजाइन करवाइए, इसकी वीडियो को बूस्ट करवाइए, सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग में लेके जाए। वहां पर जब ये एड्स में आए तो वहां से आप उनसे ईमेल एड्रेसेस जो है वो फिश कर लें, उसके बाद फिर आप वहां पर मार्केटिंग कर सकते हैं। जी दानियाल साहब, आपका सवाल है? सर मैंने जो मैम कहा इसने हैंडीक्राफ्ट वगैरह इनके साथ ही ऐड करना था कि एक प्लेटफॉर्म है एटली,
तो वो स्पेशलाइज्ड इन यूनिक चीजों के अंदर ना, तो ये उस पे जा सकती हैं Etsy पे। और Amazon इसको Etsy ETSO है Etsy, हाँ Etsy तो ऑफ कोर्स वो स्पेशलाइज। और दूसरा सर Amazon ने, पता नहीं इनको शायद आइडिया है कि नहीं इस चीज का, Amazon ने रिसेंटली कैटेगरी लॉन्च कर दी हुई है हैंडमेड प्रोडक्ट्स की। तो ये उधर लिस्ट कर लें, जब ऑर्डर वगैरह आए तो ठीक है, पाकिस्तान से शिप करते हैं। वो फिर कहते हैं कि जी उसके एनलिस्टिंग के लिए जो पहले LC बना, वो क्या LLC बनाना वगैरह जो होती है। LLC बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए फंड्स लगते हैं ना। तो इनको जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ये भी कॉस्टली है जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, इसके भी पैसे लगने हैं, लेकिन पैसे लगेंगे तो कस्टमर आएगा। लेकिन उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि वो आपका Amazon के थ्रू नहीं होगा, आपकी अपनी ब्रांड बिल्डिंग ज्यादा अच्छी होगी। देखिए पाकिस्तान में ऑनलाइन या डिजिटल तरीके से बेचना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते प्रोडक्ट को, जिसकी वजह से। और सेकेंडली ऑनलाइन का हमारा ना थोड़ा सा रुझान, मतलब हम व्यू करना बहुत पसंद करते हैं, बाइंग हम जरा डर के करते हैं। और लिमिटेड इलाके हैं, लिमिटेड सोसाइटीज हैं, लिमिटेड शहर हैं जहाँ से लोग ऑनलाइन बाइंग करते हैं, सब नहीं करते। तो इस वजह से जो बाहर की आप काम कर रहे हैं, आप US को फोकस कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है। उसके लिए यू कैन ऑलवेज चूज दिस मैथडोलॉजी, ठीक है, कि आप अपने एक वीडियो सेगमेंट को बनाएं, उसको सोशल मीडिया मार्केट करें, फ्री गिव अवे कैटलॉग दीजिए, कैटलॉग के लिए आप उसमें जो भी आपका क्लाइंट जिसको जरूरत है वो आपको खुद रीच करेगा। एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कैन हैपन। ठीक है, तो जी और कोई सवाल करना चाहे? ये देखिए अच्छा सवाल करें तो अच्छे जवाब निकलते हैं। एनीवन एल्स? तला साहब? ओके सर, थैंक यू। आपने जो बस PPT यही। का कहा है वो मैं डेफिनेटली इनके साथ शेयर कर दूंगा, और जो स्टार्टअप्स का आपने कहा है कि पर्सनली इनके साथ मेरा कनेक्ट करवाया जाए, तो उनको भी मैं आपके साथ कनेक्ट करवा दूंगा। उनकी डिटेल्स मैं ले लेता हूँ, या आपकी डिटेल्स उनके साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो वो आपसे फिर पर्सनल 1-to-1 मेंटोरशिप जो भी उन्हें चाहिए हुई वो आपसे रब्ता कर लेंगे। और जी once ठीक है। again we are grateful on behalf of PITB for your valuable time and willingness to join us today for this amazing session. And I Thank you hope so all much. of these founders gain valuable knowledge that they can apply to their own field of work, and wish them all best of luck. That's it from my side. Okay, thank you. Allah Hafiz. Once again, thanks.